Assalamu alaikum everyone. Hope you are all fine. Today our lecture number 7 is theories of conflict. आप जानते हैं we have already discussed definitions, types of, reasons or causes of conflicts. और आज हमारा टॉपिक है वो थ्योरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट है. ये कन्फ्लिक्ट्स के पार्ट के लास्ट टॉपिक है. उसके बाद एक मॉडल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे. उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको मिड से पहले मैनेजमेंट्स थ्योरी, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे. सो थ्योरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट 1 ये 2 लेक्चर पर मुश्तमिल है, 7 and 8 जो है. और देखें theory यानी why theory is important, यानी why we need a theory. थ्योरी क्यों ज़रूरत आई और एक थ्योरी की क्यों अहमियत है. Theories of conflicts are explanations put forward to explain causes of conflict. The causes of conflict are numerous and are complex, thus creating problems of analysis of specific conflict situation. Theories are advanced to simplify the causes by looking at them in categories. Basically, theory just explain the causes, the problems behind the conflict. What are the reasons? So theory just explain it. Theory give a picture of the reasons. In this lecture, we have divided. There are different kinds of conflict. We will explain it, like structural of conflicts, Marxist theory, international capitalist theory, realist theory, biological theory, and psychological theory of conflict. So let's go one by one. हम इसको देखेंगे. Structural theory of conflict. The structural theory attempts to explain conflict as a product of the tension it arises when groups compete for the scarce resources. Okay? Basically, this theory wants to explain that the main reason of competition in a society which produced tension in our society are the reasons. The reason are the scarce resources. The central argument in this sociological theory is that conflict is built into the particular ways societies are structured, organized. ठीक है, एक मखसूस तरीके से आपके सोसाइटी में क्रिएट होता है. ये एक ऑर्गेनाइज या एक स्ट्रक्चरल वे में ये क्रिएट हो जाता है. इस तरह के कन्फ्लिक्ट जो है, कुछ रीज़न होंगे उस. तो इन it describes the conditions of society and how such conditions or environment can create conflict. Conflict basically theory, पहले मैंने कहा था कि थ्योरी में आपको जस्ट बताना होता है. तो थ्योरी आपको एक पिक्चर, व्यू ऑफ पिक्चर देंगे. तो ये जो सेम जो कंडीशन जो बताएंगे वो किसी जगह पे हो तो क्या होगा, उस सोसाइटी में इस तरह के कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा. स्ट्रक्चरल कन्फ्लिक्ट थ्योरी आइडेंटिफाइज सच कंडीशंस. मिसाल के तौर पर सोशल एक्सक्लूजन्स अगर किसी सोसाइटी में हो, डिप्रिवेशंस हो, क्लासेस इनइक्वलिटीज़ हो, इनजस्टिस हो, ठीक है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशंस हो, जेंडर इम्बैलेंस या रेशियल सेग्रीगेशंस हो, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशंस एंड लाइक अदर्स. इस तरह के बहुत सारे और भी कंडीशंस हो सकते हैं, ऑल ऑफ विच लीड टू कन्फ्लिक्ट. बेसिकली कुछ एग्जांपल्स है, ये कंडीशंस है. अगर इस तरह के एग्जांपल्स आपकी सोसाइटी में किसी भी सोसाइटी में एक स्ट्रक्चरली इस तरह के हो, एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह की डिप्रेशन हो, तो क्या होगा, उस सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होगा. आप एग्जांपल किसी एरिया में देख लें, जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट हो. इवन आप बलूचिस्तान की बात करें जहाँ पे लोग स्टेट के ख़िलाफ़ उठे हुए हैं या वो कोशिश कर रहे हैं. इसी तरह अगर हम 1971 की जो टिपिकल आप बांग्लादेश में देख ले तो हमें कुछ इसी तरह के कंडीशन नज़र आएंगे जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ.
Structuralist maintained that conflict occurs because of the exploitative and unjust nature of human societies, or because of dominations of one class by another. ठीक है, ये एग्जांपल हम सेम एग्जांपल दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं. The theory is however deficient in its on-sidedness of looking at causes of conflict. ये इस थ्योरी के आप इसको कहेंगे, आप खामी कहें या इस थ्योरी के एक डिफिशेंसीज कहें, एक ही साइड को देखते हैं कन्फ्लिक्ट के. For instance, doesn't see the bright sides of the racial or ethnic diversity, and that stands that a society may derive from the pluralisms. ठीक है, ये हम एक सोसाइटी की खूबी होती है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी बहुत खूबी ज़रूरी है, या उस सोसाइटी की खूबी होती है और एक्सटेंड भी होती है समटाइम्स. तो ये इन चीज़ को इग्नोर करते हैं यहाँ पे. ये जो थ्योरी जो है, इट सीज ओनली द फ्लॉज. द स्ट्रक्चरल थ्योरी दस मेक सेंस ओनली व्हेन कन्फ्लिक्ट. The structural theory thus makes sense only when conflicts are viewed from the broadest possible perspective, and only if the observer opts to ignore alternative causes of conflict. ठीक है, यानी बेसिकली इस थ्योरीज में कहना चाह रहा है कि वो स्ट्रक्चर में कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशन की बुनियाद पे ही और इसकी वजह से ही आपके सोसाइटी में ये कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है. और इस कन्फ्लिक्ट की मेन वजह है जो है एक्सप्लॉयटेटिव एंड अननेचुरल ह्यूमन सोसाइटीज़ है. तो अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें तो मे बी पॉसिबल इट विल नॉट हैपन in any society. So the second important theory is Marxist theory of conflict. The Marxist theory is an offshoot of the Marxian explanations of society. Basically, it is a theory of Karl Marx. ठीक है, उनके नज़रियात है about the society के बारे में. So society is divided into unequal classes. The one is strong, rich, and noble, and bears the take of bourgeoisie, who controls. And कौन है वो लोग? Who controls the instrumentality of state, while the other is deprived, socially deflated, financially infantile, and is called the proletariat. ठीक है, ये दो ग्रुप्स है जिसको हम अनइक्वल क्लास, आपकी सोसाइटी बेसिकली अनइक्वल क्लासेस में मुश्तमिल है, जिसमें ये बुर्जुआजीज एंड प्रोलेटरिएट है, यानी वर्किंग क्लास जो अनस्किल्स, यानी जो सिर्फ काम करने वाले गरीब तबका जो आप कह सकते हैं, यू कैन से इसको प्रोलेटरिएट कहते हैं. और जो बुर्जुआजी जो है वो क्या, सरमादार हो गया, नोबल हो गया, रिच लोग हो गए. ठीक है, इन्हीं पे मुश्तमिल, यानी हैव एंड हैव नॉट यू कैन से इन आवर सोसाइटी. सो एक कांस्टेंट स्ट्रगल से बिटवीन द ट्यूज, हमेशा से इन दोनों के दरमियान सोसाइटी में एक शुरू से रहा है कि एक हैव एंड हैव नॉट का एक कंसेप्ट, और उनके दरमियान हमेशा एक स्ट्रगल्स रहा है बेसिकली. लेकिन मोस्टली जो कंट्रोल रहा है हमेशा से, फाइनेंशियल कंट्रोल या फिज़िकल कंट्रोल, जो हमेशा वहीं सरमादार तबके के पास रहता है. और मार्क्स इसी को लेके मार्क्स प्रोटेस्ट करता है कि दैट्स मार्क्स स्टैंड्स स्टेट इज इटसेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ द इरकॉन्सिलेबिलिटी ऑफ द क्लास एंटेगनिज्म्स. ठीक है, यानी इन लोगों के, यानी इन दोनों की नफ़रत की वजह से, इन क्लास स्ट्रक्चर की नफ़रत की वजह से आपकी फिर बेसिकली स्टेट खुद मरज़ वजूद में है. So the state is there for structures be part of perpetual state of conflict. So यहाँ इस तरह के states में क्या होगा, हमेशा एक conflict होंगे, हमेशा उसमें have and have not का एक हमेशा से conflict रहता है society में. The rich controls the state as well as means of production. ठीक हो गया. The rich thus grows wealthier at the expense of the poor, who lives at his mercy and is implicitly embittered by the development. The central argument of Marxism is thus the capitalism is the head of the state, and that same capitalism exploitative and oppressive, and has been responsible for the polarizations of the society and states into two incompatible classes. ठीक है, बेसिकली यही लोग बेसिकली क्या है,
रिस्पॉन्सिबल है। कैपिटलिज्म जो कैपिटलिस्ट जो सरमायादार तबका है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपके स्टेट्स में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में। द लिमिटेशन ऑफ द मार्क्सिज्म इज सिमिलर डेट टू द स्ट्रक्चरलिज्म्स। अगर हम इसके ड्रॉबैक देख रहे हैं तो इसका भी एक लिमिटेशंस है, सिर्फ यही हैव एंड हैव नॉट की बात करते हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, बाकी दूसरे एक्सपेक्ट भूल जाते हैं स्टेट के। दिस इकोनॉमिक प्रिज्म्स इज़ नॉट इनफ टू कैप्चर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट कॉजेशंस, ठीक है। तो बेसिकली ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक व्यू को देखते हुए आप एक स्टेट के बारे में वो इस तरह के नज़रियात रखते हैं कि यहाँ स्टेट हमेशा एक क्या है, एक परपिचुअल कन्फ्लिक्ट प्लेस है जहाँ पे हमेशा इन हैव एंड हैव नॉट्स का एक कन्फ्लिक्ट रहता है उस सोसाइटी में। सो नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल कैपिटलिज्म थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट। These theories capture the historical import of colonialism and imperialisms. Basically ये जब कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, और ये एम्परलिज्म स्प्रेड हुआ पूरी दुनिया में, तो बेसिकली ये उसी का है उसी की है एक शक्ल है, ये उसी एरिया से या उसी रूप में निकला है कन्फ्लिक्ट जो है, थ्योरी जो है। अकॉर्डिंग टू हॉब्सन दिस इन हिज क्लॉज एम्परलिज्म्स आर स्टेडी, ठीक है, द एक्सटर्नल ड्राइव ऑफ द वेस्टर्न नेशंस propelled by the industrial revolutions began to create numerous platforms of hard conflict. When industrial revolutions came in the Europe, especially in the British 1760s and beyond, तो उसके बाद क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीरियन सोसाइटी चेंज टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी इसमें चेंज हो गए, प्रोडक्शंस मीन ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत बढ़ गए, तो उसके बाद वो जो रिवोल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया में ये जो उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट किया। द सर्च फॉर द रॉ मटेरियल्स नीड्स टू इन्वेस्ट सरप्लस कैपिटल्स एंड सर्च फॉर द न्यू मार्केट आउटसाइड यूरोप compel an imperialist pathway as the Western countries desperately sought such market, raw materials and investment climates at expense of the peace and prosperity of the local in what is known as global south, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री देख ले तो ये यूरोप से निकल के पूरी दुनिया में, स्पेशली वो अफ्रीका, एशिया यानी साउथ की तरफ आके उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल्स लिए, उसके बाद उन्होंने मार्केट तलाश किया और अपने जो प्रोडक्ट्स को यहाँ पे उन्होंने फ़रोग किया। इस तरह एक पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाए। दिस लेड टू colonizations as well as the collisions of cultures and as well as an ultimately conflict, ठीक है। उसके बाद हमें हिस्ट्री में देख ले तो we have also victimized of such type of colonizations by British imperialist power, so we can observe, we can see what happened in our area. So फिर उसके बाद ये जो कन्फ्लिक्ट जो है, इस तरह की कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में। Imperialism thus became the last and highest stage of the capitalism, ठीक हो गया। जब कैपिटलिज्म्स के बाद फिर वो imperialisms की तरफ उसका स्टेज हाईएस्ट स्टेज है। The international capitalism theory aptly explains the collaborations of the Western financial markets and capital today. It is solidified and extended their economic influences all over the world and has leveraged them the economic exploitations of the developing economies, which has created imbalance between what is now the north and south. ये आज भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। बहुत सारे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कोई थोड़ा सा भी इशू आए, ये लोग इकोनॉमिक को यूज़ करते हुए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, नॉर्थ और साउथ एक गेप रखता है यहाँ पे। तो इस तरह एक कन्फ्लिक्ट है पूरी दुनिया में नॉर्थ और साउथ का भी। तो ये है कैपिटलिस्ट थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट। लास्ट वन इज इन दिस थ्योरी इज इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट। क्या है ये? सेम नज़र आते हैं लेकिन है डिफरेंट है। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन्स द इकोनॉमिक undercurrents in conflict causations,
अच्छा, ये अनकरंट अंडरकरंट्स, इकोनॉमिक्स अंडरकरंट्स क्या मुराद है? यानी अंडरकरंट्स यू कैन से एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, एक एक यानी इमोशंस, बिलीव्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिचुएशन that is hidden and usually negative and dangerous but has some effects. So there is a considerable interface between politics, power, resources, and value and scarcity. People seek people seek power because it is means to an end, and more often economic ends. कम्युनिटीज़ फ्यूड, यानी कम्युनिटीज़ में जो इशू है, जो प्रॉब्लम्स है, जो झगड़े है ओवर फार्म लैंड, ग्रेजिंग फील्ड्स, वाटर रिसोर्सेज एंड ग्रुप fights government overall allocations of resources or revenue. Scarcity wants, needs, or the fear of this scarcity is often a driving force for political power, contention for the resources control, and so forth. Conflict is thus not far-fetched in the causes palpable fear or the threat of scarcity. Just as the fear of the poverty and depression could lead to fraud or corruption, so it is the threat of the real famine, depression, mismanagement, and scarcity of resources could propel conflict over the resources control. ये यानी आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें नज़र आते हैं पॉलिटिकल पावर्स की बात करते हैं, या पावर रिसोर्स की हम बात करेंगे, या पॉलिटिकल इकनॉमी की हम बात करें। बेसिकली इकनॉमी और पॉलिटिक्स का एक रिलेशन, और उसमें अगर हम करंट एग्जांपल दे डिफरेंट एरिया से, बेसिकली जो जितने भी वार या कन्फ्लिक्ट चल रहा है दुनिया में, उसकी पीछे जो है वो बेसिकली हमें रिसोर्सेज इकनॉमिक नज़र आता है, ठीक है, माशी और उस फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स के लिए, उनकी वैल्यूज़ के लिए ये जंग होती है। तो सोसाइटी में ये एक आम सी बात है कि ये कन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली आपकी इकनॉमिकली अपनी रिसोर्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कन्फ्लिक्ट, इस तरह की कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। सो ये इकनॉमी इज़ द मेन रीजन ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिहाइंड दिस कन्फ्लिक्ट।